for your speaking. Do you remember, guys? We have done many basic classes as well, many advanced classes. And if I talk about all the classes, on the behalf of all the classes, you are able to speak now. Speaking have two kind of era. Speaking have two kind of era. Right. One that is called only speaking, and second one is called smart speaking. Smart speaking. So if you just compare both of them, you would find that a person who speaks English, most of the people they just try to translate Hindi to English. Yes, sir. Okay, Yes. most of the person who speaks, most of the person I'm talking about. Okay, Okay. but some of them they speak English very smartly without translating any single word. So Okay. they are actually poles apart, and they got the name as well. A translator, another one, a smart speaker. A translator and a smart speaker. So what do you want to be? Do you want to be a translator or Smart speaker. Smart Smart. speaker. so do you know how to be a smart speaker? More We are practice. practice with you and with any With other more words practice. and Yeah, you have to use some different kind of things. yes. Okay, different kind of new word, new things, new slang, Yes, new sir. sentences, Yes, new sir. ready-made sentence. According to era, you have to use the things. Of course. So what is today, guys? Today I'm just going to let you know some very important structure, which is too much spoken, but buddies know. They actually don't know how to speak this sentence, but today I'll just make you correct about that. We are going to have some connectors today. Some advanced connectors which can make your English very impressive. If you learn properly, if you use properly, and if you speak properly, then okay. Okay, sir. So shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो मैंने आपको सेंटेंस बोला, यहीं से देखिए शुरू करते हैं. मैंने बोला shall I start now? इसका क्या मतलब होता है? मैं अब स्टार्ट करूंगा, Start. शुरू करूंगा. करना. ये मैंने आप लोग को बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन आप लोग को याद नहीं होगा. मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भाई जब ये कहना होता है, क्या आप सब लोग अगर राजी हैं, तैयार हैं, तो क्या मैं शुरू करूं? यानी जो भी काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इजाजत लेनी होती है ना. Yes. डेमोक्रेटिक कंट्री ना Yes. इंडिया. Yes, sir. Yes. डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? Yes, In sir. India, we have to take permission. In India, we have to take permission कि भैया ये काम करूं कि ना करूं. I am not a dictator. Do you know Yes, who is no dictator? dictator. I Yes, am sir. not a dictator. So if I am not a dictator, so I will have to take your opinion first. So let me tell you. Shall I start now? Yes, sir. Yes, sir. अब Of course. इसका जवाब यस नहीं दिया जाता है. देखिए समझिएगा, क्योंकि shall I start now एक ऐसा रेडीमेड सेंटेंस है जिसको मैं आपसे कह सकता हूँ. जैसे आपने देखा ना, कुछ लोग गजल सुनाते हैं, शेर और शायरी करते हैं. देखा है ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने देखा होगा, उसमें जब कोई शेर किसी को सुनाना होता है तो पहले कहता है भाई मुलाहिजा फरमाइए. जी, इरशाद. कहते नहीं, मुलाहिजा फरमाइए, मुलाहिजा. इसका मतलब होता है कि अगर आपको परेशानी तकलीफ ना हो तो दो चार लाइनें सुना दूं, ऐसे कहता है वो. उसको इंग्लिश में बोलते हैं शैल आई स्टार्ट नाउ, मुलाहिजा फरमाएं. सामने वाला जवाब देता है इरफान, नहीं क्या, इरशाद. इरशाद. अरे भाई यार नाम हम कुछ भी कर लो है ना. इरशाद, इरशाद. ये जो इरशाद होता है इसका मतलब होता है, अरे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू हो जाइए, पूछिए ही नहीं. इसको जब इंग्लिश में आप चेंज करोगे ना, तो आपको पता क्या बोलना है? आपको बोलना है बाय ऑल Ever. मीन. By all means. बाय ऑल मीन्स आपको बोलना है. अगर कोई आपसे पूछे शैल आई स्टार्ट नाउ या शैल वी स्टार्ट नाउ, आप बोलेंगे बाय ऑल मीन्स. क्या बोलते हैं? By By all all means. means.
बाय ऑल मीन पूछने की जरूरत ही नहीं, शुरू हो जाइए ऐसे, है ना, ये चीज होती है। बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि आप इस काम को शुरू करिए, बाय ऑल मीन्स। बात समझे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देखिए एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिखूंगा, इत्तू सा, कित्तू सा, Ittu, sir. इत्तू सा। अब इत्तू से सेंटेंस को आपने दिमाग लगाकर ट्रांसलेट करना है, जिससे मैं पूछूंगा उसको बताएगा। मैं हिंदी में सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा है? मेरी हिंदी की राइटिंग अच्छी बिल्कुल नहीं, इंग्लिश की ही कौन सी खाक अच्छी। यही तो Fun. मैं कह रहा हूं। एक बहुत कॉमन सा सेंटेंस मैंने लिखा है, अगर ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा उर्दू वाला दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. हिंदी वाला भी दिख रहा होगा। अब Yes, मुझे sir. ये बताओ, अपना अपना दिमाग सब लोग इस्तेमाल करो, 1 by 1 में पूछ रहा हूँ। सुमैया सलीम, सुमैया सलीम। Yes, sir. मैम अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में चेंज करेंगी तो बोलेंगी क्या? Sir, I am also saying. I am also saying. अच्छा, आई एम आल्सो। चलो निकट यास्मीन आप बताइए। निकट, निकट, ए निकट। Yes, sir. हाँ बताइए। I said to you. I said to. यही तो मैं कह रहा हूँ, काम चल रहा है लाइफ में। I. Sir, Continuous tense में sir. भाई कॉमन सेंस है, कर रहा हूँ। Yes, sir. I'm saying like that. आई एम सेइंग लाइक दैट। चलो ट्राई करते रहो, बहुत अच्छी बात है, ट्राई कर रहे हैं आप लोग। sir, मैं बताऊं? So exactly, I'm saying. चलो आयशा अंजिला ने कहा एग्जैक्टली आई एम सेइंग। चलो और लोग बताओ। Sir, हाँ जी। that's which I am saying. चलो और नेक्स्ट ट्राई करो। मुजीब आलम, Yes, sir. बताइए I सर। is I say is this. आई से दिस, काम चल रहा है लाइफ में, आईएनजी के साथ में एक्शन बोलना पड़ेगा। नगमा, ए नगमा, नगमा कहाँ चली गई भाई? बुशरा मैम, बुशरा मैम ट्राई करिए। बुशरा मैम आप ट्राई करें। ये बच्चे भाई, ये सब आमिर, अयान, अख्तर, ये सब क्यों नहीं आते हो भाई आप लोग? बुशरा, सईद, फिरदौसी, गजाला, बिलाल, प्रीति, उमराव, आप लोग सो रहे हो क्या? खाली रिसीव करके आप ऑन कर देते हो क्लासेस को। हैंड करिए सब लोग फटाफट। सफिया, सदफ, रिजवी, प्रीति, बिलाल, जाकिर हुसैन, शाइस्ता कादरी, शाइस्ता है, I'm सब telling लोग। that. हाँ जी। सर आई एम सेइंग लाइक दैट होगा। वेरी गुड। और तैयार और लोग करिए। नगमा अंसारी मैम चली गई, उनसे पूछना था, मुझे लग रहा था कि बता लेगी। अयान अख्तर क्या बताया आपने? सर आई एम सेइंग लाइक दैट। अब देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने कहा हम कनेक्टर्स पढ़ेंगे, है ना? क्या Yes, कहा? Connectors. कनेक्टर्स पढ़ेंगे, यानी सेंटेंस को एक दूसरे से वो कॉन्टेक्ट में लाकर जोड़कर कुछ नया करेंगे। तो आपको हिंदी में पहले ध्यान देना है कि इसमें एक बहुत इजी सा
सेंटेंस है अगर तो को हटा दिया जाता है तो। यही मैं कह रहा हूं, अगर आप इतना कहेंगे, बोलेंगे दिस आई एम सेइंग, यही तो बोलोगे ना। Yes, भाई मैं कह रहा हूं आई एम सेइंग, I am saying. यही मैं कह रहा हूं दिस आई एम सेइंग, लेकिन यही तो क्या कह रहा है सेंटेंस में, यानी तो आपकी इस बात को दबाव दे रहा है ना, यानी जोर दे रहा है। आप जो बात कह रहे हैं ना, ये तो एक शब्द जो आ गया बीच में, ये आपकी बात के ऊपर थोड़ा दबाव देकर बात कर रहा है। यही तो, ऐसे यही तो हम भी कह रहे हैं यार, यही तो, यानी जो मैंने कहा वही, खड़बड़ाइए नहीं, अरे ना खड़बड़ाए, यानी जो मैंने कहा यही पापा भी कह रहे हैं, ये मैंने कहा तो नहीं समझ में आया, अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो यही तो का मतलब बात पर जोर देना। कनेक्टर यूज करते हैं इसमें, किस तरह के कनेक्टर्स होते हैं देखिए। अभी एक मैम थी मेरे ख्याल से अनशीन, छोटी शीन, क्या नाम है भाई, उन्होंने Yes, क्या sir. try किया था, हाँ वो ऐसा कुछ मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा दूर रह गई थी। इसमें कौन सा कनेक्टर लगेगा, इसमें That's- लगता है that. दैट इज व्हाट। कौन सा कनेक्टर लगाएंगे, That's is what. That's what. हाँ दैट इज व्हाट। दैट इज व्हाट का मतलब होता है यही तो, वही तो। देखो दो मतलब होते हैं इसके, यही तो वही या तो। वही तो। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले यही बोला जाएगा, बोलेंगे दैट इज This व्हाट is आई एम what सेइंग, I am saying you. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यार यही तो मैं कह रहा हूँ। कैसे बोलोगे बताओ, That's it. Is what That's That what is I'm that saying. हाँ I am दैट इज व्हाट saying. आई एम सेइंग, हाँ यही तो मैं समझा रहा हूँ यार, दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। कैसे बोलोगे, That is that what is That's what what I am I'm making saying. you understand. हाँ पास्ट में बोल Sir. सकते हैं, यहाँ पर वॉक कर देंगे, बस पास्ट में बोलेंगे, वॉक करके बोलेंगे। That's what. जैसे कितने यही बजे? तो मैं पढ़ा रहा था भाई, हैं कितने बजे हैं? मैं इतनी देर से सबको मैसेज कर रही हूँ कि मुझे अनम्यूट कर, कौन नहीं कर रहा है ये unmute मुझे आपको? म्यूट कर दे। क्या नाम है मैम आपका? सॉरी मैम, सारी मुझे Oh. आपको किसी हिम्मत कैसे हुई किसी की आपको म्यूट करने की भाई? कैसे देखा मैंने, कोई फौरन नहीं। करने किया। ये लीजिए लीजिए, चलिए चीजिए, आप हो वही गई करते हैं को ये, पता नहीं। मुबारक। आप को होस्ट हो गई। अरे मैडम आप को होस्ट हो गई, आप दूसरों को खुद अनम्यूट करिए, बदला लीजिए, चाहिए बदला लेकर वापस आइए। भाई ये जो लड़के नीचे हैं, आमिर, दानिश, बिलाल, मुजीब, ये लोग क्यों भाग गए? अनम्यूट होइए, आप लोगों से बात करनी है। जाकिर हुसैन, ये लोग अगर हैंड रेस करते हैं सबको अनम्यूट करिए। चलो ठीक है। नगमा अंसारी को होस्ट है मैडम आप, आपको कोई अनम्यूट नहीं करेगा आप, ठीक है? तो अभी आप समझ गए ना, यही तो दैट इज व्हाट, वही तो दैट इज व्हाट। कभी कभी बात करते करते वही तो मैंने कहा था यार, वही तो मैंने कहा था, दैट इज व्हाट आई सेड, दैट इज व्हाट आई I सेड। said. देखो ये जो सेंटेंस है ना बेटा, ये सेंटेंस किसी भी फॉर्म में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इंडेफिनिट में होगा, पास्ट में होगा, फ्यूचर, उससे मतलब नहीं, उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा ये, दैट That is what. इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई सेड, And I दैट said. इज व्हाट आई मेड यू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट आई टॉट, यही तो मैंने पढ़ाया था यार, हैं? दैट इज व्हाट आई टॉट, ऐसे बोल लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चाहे यही तो बोलना हो चाहे वही तो बोलना हो, दोनों के लिए दैट इज व्हाट का यूज किया जाता है। दोनों को आप शॉर्ट कर सकते हैं, दैट्स व्हाट बोल सकते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे भी बोल सकते हो। Okay. बात समझे? Yes. चलिए Yes, sir. ऐसे ही देखिए, ऐसे ही बेटा एक और कनेक्टर है, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा था, ऐसे ही एक और कनेक्टर यहाँ पे ऐड करते हैं। देखिए एक और सेंटेंस है, यही तो मैं रहता था पहले,
अब बताओ। That is where I live. That is what I live. अब देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने लिखा यही तो, ये है यही तो, ये है That is यही तो। यही, हाँ यही। ओके ओके। हाँ That is there. हाँ That is there. I That live is to there I before. यानी दैट इज वे हो जाएगा यहाँ पर, है ना बात। दैट इज वे में आ जाएगा यही तो या वही तो, है ना। तो दैट इज वेयर, आगे अली। यही। जैसे आप कहीं से निकलते हैं और पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं खेला करते थे बचपन में, यूज टू पढ़ाया था ना, याद है। Yes sir. Yes, sir. तो उसको कहते नहीं, आपके फ्रेंड ने कहा कि यार मैं तो इंग्लिश आजकल सीख रहा हूँ। कहाँ सीख रहा हूँ? अरे वो शान सर से सीख रहा हूँ। अरे यार वही तो मैं भी पढ़ा कर, वही तो मैं भी पढ़ता था। तो वही तो मैं भी पढ़ता था, बोलेंगे That's दैट इज वेयर आई यूज टू लर्न। दैट इज That is वेयर where I आई used यूज to टू learn. लर्न। That is where I बात used. समझे? Yes sir. हाँ, ऐसे बात करते हैं। तो यही तो वही तो के लिए दैट इज वेयर का यूज किया जाता है। ऐसे ही भाई ये कौवे का एडमिशन है यार, ये कौवा क्यों पढ़ रहा है पीछे से, प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ है उसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे ना। क्या चीज? जैसे आपने लिखा है यहीं तो मैं रहता था पहले, तो जो हाँ तो पहले वाला बिफोर वर्ड बोलिए ना तुम, ना ना वही- बिफोर बोलिए ना, उसमें क्या है, Before first. तो मतलब उसमें कोई ट्रांसलेट करना दिक्कत है नहीं। नहीं। That's where before I live. देखिए ट्रांसलेट ये तो सेंस है, सिंपल, एकदम सिंपल का सेंस। अगर आपने कहा मैं पहले यहाँ रहता था, तो मैं पहले यहाँ रहता था, तो बिफोर तो बोलना ही बोलना है आप। भाई यस दैट इज वेयर आई लिव बिफोर, बस। Yes sir. ये तो मैंने बस यूं ही लिखा है, शब्दों के ऊपर ना जाया करिए, है ना। क्लियर कर रहे थे। हाँ जी, क्लियर, ज्यादा क्लियर ना Clear. करिया करिए, Clear. क्लियर क्या Clear. मैं रहता था। तो अभी क्या सोच रहा था? हाँ ऐसे ही That's it. या वैसे ही, Like this. ऐसे ही या Like वैसे this ही। and that is. ऐसे ही वैसे ही का यूज कहाँ किया जाता है? जैसे देखिए ऐसे ही तो मैंने सीखा है, वैसे ही तो उसको मैंने बताया था, ऐसे ही तो मैं जान पाया हूँ, वैसे ही तो वो खाना बनाना सीखा है, ऐसे ही तो मैं बाइक चलाना सीखा हूँ, ऐसे ही तुम भी सीखोगे। ये जो ऐसे ही वैसे ही होता है, पता है क्या होता है? ये होता है दैट इज हाउ। That is That is how. how. हाँ, स्नीज। तो जैसे बोलते हैं नहीं यार, इंग्लिश कैसे सीखेंगे बताइए यार, बड़ी मुश्किल चीज है यार, कैसे सीखेंगे? अरे डोंट वरी यार, देखो एज आई लर्न, बोलो As I I learn. learn. As I learned. मैंने सीखा है, एज आई लर्न, तो बोलो As As I I learn. learn. Done. As I learn. दैट इज हाउ, दैट That इज is हाउ यू हैव That's टू how. लर्न, दैट That इज is हाउ how यू do हैव you टू, learn. You वैसे have ही to तुमको learn. सीखना है। यानी जैसे मैंने सीखा है वैसे ही तुमको सीखना है, तो वैसे ही यानी जोर दिया आपने, है ना। तो दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न, ये लिखते जाइएगा कॉपी में सेंटेंस एग्जांपल वन, Yes, sir. ताकि उससे सेंटेंस बना सके आप। एज आई लर्न इंग्लिश, दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न। That is how दैट इज हाउ यू हैव टू लर्न। you have to That is how have Is how. to learn. अच्छा एक और सेंटेंस आपको बताते हैं, जिसमें जो वैसे ही लिखा है ना, ऐसे ही इसको यूज किया जाता है, देखो, लेकिन सेंटेंस के बीच में, वैसे ही पापा आ गए, वैसे ही पापा आ गए। तो इसमें वैसे ही का मतलब क्या हुआ पता है? वैसे ही का मतलब हुआ दैट इज व्हेन।
क्या हुआ? That is when. दैट इज That is is when. when. दैट इज व्हेन, That is यानी when. वैसे ही। जैसे आपने कहा अरे यार अच्छा वो मैंने हैव एज एन एक्शन तो पढ़ा दिया ना आप लोग को, Yes, sir. Yes. Yes. तो उसमें पढ़ाया था ना हैव अ बॉल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Enjoy. दैट्स हाउ नहीं बेटा, दैट्स हाउ नहीं, दैट्स व्हेन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप कह रहे थे कि आई वाज हैविंग फन एट होम, आई वाज हैविंग फन एट होम, कैसे बोलोगे? I was having I at was home. on a. बोलो। I was on at home. I was having क्या at कह home. रहे थे? आई वॉज हैविंग एट होम। अरे मैं कह रहा हूँ आई वॉज हैविंग फन, और आपको बोलना है आई वॉज हैविंग अ बॉल। Having A ball. I was having a हाँ, having a आई ball. वॉज हैविंग अ बॉल एट होम, at बोलो। home. I was I having. was was having having at a a ball ball I at was having a ball at home. वैसे ही पापा आ गए यार, कूट दिए। दैट इज व्हेन पापा केम, That is That when is when- father. That is when Papa. बस हाँ, पापा केम, पापा आ गए। आप कहते हैं नहीं कि जब देखा सब तरफ सर जी उधर चले गए, सब लोग टीचर उधर चले गए, वरना एग्जाम दे रहे थे, चुप से नकल निकाला ऐसे, लिखना शुरू किया, जैसे नकल की, एज आई कॉपीड, क्या बोलते हैं? as As I I copied. I copied. दैट इज व्हेन टीचर केम। That is when teacher Is came. when teacher कि came. जो लोग नकल करते हैं वैसे करते तो सारे के सारे लोग हैं, वो अच्छे से जानते होंगे, जैसे ही आप निकाल के कुछ करने लगो वैसे ही पीछे अगर खड़ा हो जाता है यार लिखो बेटा ऐसे, वो पकड़ लेता है, वो वैसे तो नहीं आएगा नजर आपको, लेकिन जब निकाल लिया आपने या किसी ने आपको दे दी, आपके पास पड़ी भी मिल जाती है तो पिटाई आपकी लग जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, ये वैसे ही का सेंस जो है वो समय से लेकर है, यानी वक्त से लेकर है, यानी उसी समय, उसी पल, उसी क्षण, वैसे ही दैट इज व्हेन का यूज करें। ठीक, बात समझे कि एक और एग्जांपल लिखा है? समझ गए। Yes, sir, understand. Yes, समझ sir. में आया सर. कोई मसला हो तो बता दीजिए ना, बता देंगे, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दैट इज व्हेन, ठीक, ऐसे ही वैसे ही, इस वाले सेंस में। ऐसे ही देखिए बेटा, इसी का दैट्स वाई तो आप बोलते ही हो, है That's नहीं? हाँ, ये तो आप बोलते ही हो, तो उसको बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन एक और यहाँ पर सेंटेंस है, उसको समझते हैं। देखिए अक्सर लोग ना इन छोटे छोटे सेंटेंस में फंस जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कभी कभी, भाई इंटर की पढ़ाई आपने अच्छे से पास की, बीएससी क्यों कर रहे हो? आपका जवाब आया ताकि मैं डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, डॉक्टर बन सकूं, ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। बीएससी क्यों कर रहे हो? ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। बीकॉम क्यों कर रहे हो? ताकि मैं सीए बन सकूं। बीए क्यों कर रहे हो? ताकि मैं टीचर बन सकूं। तो ताकि यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा है? ये पता है ये कौन सा कनेक्टर? इससे इंग्लिश में बोलते हैं सो दैट। so that. सो दैट का मतलब होता है ताकि, ताकि. और ताकि 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 ताकि, ऐसे गाना भी। ताकि yes sir. ताकि तो ये वो वाला ताकि नहीं है भाई, ये वो वाला ताकि है जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, जैसे भविष्य में काल्पनिक चीजों की बात कर रहे होते हैं, ये कर सकूं, है ना, या करूं, या भविष्य में बनूं, उस तरह में ताकि का यूज किया। सेंटेंस कहाँ पर बहुत मर्तबा बोलते होंगे हम लोग ऐसे कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो भाई? आप बोलेंगे सो दैट so So that. that so that So I that can get a good job, I can I can get Get a good job. ताकि मैं अच्छी नौकरी पा सकूं। ठीक है, तो ऐसे Yes. आप एक सेंटेंस चाहे तो लिख सकते हैं, ताकि मैं इंग्लिश बोल सकूं, है ना। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? सो दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, so that I can English. Speak English. ताकि मैं अंग्रेजी बोल सकूं। ठीक है, आटा क्यों गूंथ रहे हो? यार कैसी बात कर रहे हो? सो दैट आई कैन प्रिपेयर रोटी, ताकि मैं रोटी बना सकूं। कुछ भी ऐसे आप लगाकर यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, Yes sir. ऐसे ही बेटा देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर आता है, हम कभी कभी ऐसे बात करते हैं, हम कहते हैं
चूंकि 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 मैं बीमार था, क्योंकि मैं बीमार था इसीलिए नहीं आया। तो इसमें ये सेंटेंस तो कॉमन है, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपको ले जाता है ना वो मैथ में ये वाली जो होती थी ना ऐसे। यस सर, नहीं सर ये इसलिए ये चूंकि तो पता चलेगा इसको ऐसे कर दीजिए तो बन गया इमोजी, चूंकि है क्या नहीं? तो इसको ना ऐसे हटाते हैं और आपको बताते हैं इसको इंग्लिश में बोलते क्या है। इसे हम बोलते हैं सिंस। सिंस क्योंकि को क्या बोलते हैं? सिंस Since. बोलते हैं। यानी सेंटेंस ही सिंस से शुरू होगा ना, बिकॉज नहीं। सेंटेंस Since. आपका जो है सिंस से शुरू होगा। क्या बोलोगे? सिंस आई वाज सिक। Sick. कैसे बोलोगे? Since I was Hmm. सिंस आई वाज सिक यार, आई कुड नॉट कम, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट कम, इसीलिए नहीं आ पाया यार, बहुत बिजी था यार इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं किया, मैं बहुत बिजी था। बोलेंगे सिंस आई वाज बिजी। क्या बोलोगे? since I was busy. सिंस आई वाज बिजी दैट्स व्हाई आई डिडंट कॉल यू। ठीक है बेटा? Yes sir. ओके डन। Sir, we can use because behalf of since. नहीं वो बात नहीं आएगी वहां पर, क्योंकि चूंकि का जो वर्ड यूज है ना, जब जी। आपको खास करके चूंकि ही बोलना होता है, क्योंकि कंडीशन है, ये कंडीशन है कि पहले कुछ ऐसा हुआ उसके बाद आपने ऐसा किया। तो बिकॉज जो होता है उससे पहले सेंटेंस बोलना होता है ना? इसीलिए यहाँ पर क्योंकि के लिए डायरेक्ट यूज हम करेंगे, तो वही एकदम अपोजिट हो जाएगा ना उसका। क्योंकि, हाँ सर क्योंकि। तो अभी आप समझ गए कि सिंस का यूज कहाँ पर करना है। यस सर। Yes, sir. ऐसे ही देखिए एक और सेंटेंस यहाँ पर ऐड करते हैं। अच्छा आपको वो हैड बेटर बताया था हमने, हैड बेटर यस सर, Yes. करना चाहिए। क्या होता है? क्या होता कर है? लेते तो अच्छा होता, कोई काम कर लेते तो अच्छा। हाँ, यानी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप इस काम को करें, है ना? Yes. हाँ, यस सर। अच्छा हो अगर आप इस काम को कर लें, क्या ही बात हो अगर आप ऐसा बन जाएं, तो वो हैड बेटर होता है। चलिए वो तो मैंने बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है, मैं आपको बता दूं, इग्नोर करना। सुना है ना इग्नोर करना? यस सर। इग्नोर Yes, कर sir. दिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ देखिए, इग्नोर। अगर आपको बोलना हो यार मैं ना इन लोगों को इतना ज्यादा मुंह नहीं लगा तो इग्नोर करता हूँ, तो आई इग्नोर देम। सिंपल सेंटेंस बनेगा आई इग्नोर देम। मैं इन्हें मुंह नहीं लगाता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। कैसे बताओ? I ignore them. I ignore them. आई इग्नोर। आई इग्नोर देम। मैं इन्हें मुंह नहीं लगाता। I ignore. तो चलो ठीक है, मुंह नहीं लगाते, सही बात है। लेकिन इग्नोर करना दो तरह का होता है। एक होता है इग्नोर करना, एक होता है अवॉइड करना। सुना है ना? यस सर। दोनों में क्या फर्क है? Avoid करने में हमेशा अनदेखा करना। Sir, same ही तो है हम दोनों का मतलब। Avoid. दोनों सेम है लेकिन फर्क है। देखो बच्चों, Sentence के अकॉर्डिंग होगा सर, अलग अलग। हाँ नहीं, बहुत कॉमन सा सेंस है इसके अंदर, है ना? नहीं बता रहा हूँ। देखो इग्नोर का मतलब भी नजरअंदाज कर देना, अवॉइड का मतलब भी नजरअंदाज कर देना। लेकिन Yes, sir. हम जिन्हें जानते हैं, सुनो, हम जिन्हें जानते हैं, पहचान, जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हम बोलते हैं इग्नोर। समझे आप? जानकर नजरअंदाज कर। लेकिन आप नहीं, वो तो है ही भाई, नजरअंदाज करने का मतलब ही है कि आप जान के नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम जिन्हें जानते पहचानते हैं, जो हमारे दोस्त यार मेट फ्रेंड्स रिलेटिव, चाचा मामा फुफ्फा फुफ्फी आंटी है ना, इनको अगर हमें नजरअंदाज करना हो तो हम इग्नोर वर्ड का यूज करते हैं। या उन्होंने हमें नजरअंदाज किया तो हम बोलेंगे अरे यार कल फुफ्फा मिले एंड ही इग्नोर्ड मी, है ना, नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपको कुछ बोल दे, कोई आपको कमेंट पास कर दे, है ना, कोई ऐसी वैसी बात कह दे आपसे, तो आप इसको इग्नोर नहीं, आप Avoid. इसको अवॉइड कर, Avoid. क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना ही उनसे नहीं। Yes. Avoid समझे them. आप? यस सर। बस अक्सर, हाँ आपने सुना होगा लोग बोलते हैं अरे बस में चढ़े सफर में, तो बस में कुछ बदमाश टाइप के लोग भी चढ़ गए, अब वो कमेंट पास कर रहे हैं, है ना, तो कह रही अभी हम इसको ना बताएंगे, अरे छोड़ो यार, अवॉइड दो, अवॉइड करो।
अवॉइड देम, क्यों? क्योंकि वो है कौन यार, हम तो जानते भी नहीं कौन है वो लोग, छोड़ो ऐसे। तो वहां पर आप बोलते हैं अवॉइड। लेकिन बेटा जमाना जैसे बदलता है ना, तो चीजें भी बदलती है, लैंग्वेज भी बदलती है, सेंटेंसेस भी बदलते हैं। इसकी जगह इग्नोर या अवॉइड, इन दोनों की जगह पर एक नया फ्रेज आया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ वो है। इसकी जगह हम बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ यस सर। सर। ठंडा कंधा। कोल्ड शोल्डर यानी ठंडा कंधा। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है अवॉइड या इग्नोर कर देना, लेकिन जानबूझकर इग्नोर कर देना कोल्ड शोल्डर कहलाता है। यूज कैसे करोगे? ये एक्शन नहीं है बेटा, है ना, इसको एक्शन बनाना है आपको। कैसे एक्शन बनाओगे मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसको गिव के साथ बोला जाता है ना? इसको हम गिव के साथ बोलते हैं। जैसे आपने कहा उसने मुझे ना जानबूझकर इग्नोर किया है, बोलेंगे ही गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म गिव। बोलेंगे ही गेव मी कोल्ड शोल्डर। सिंपल है। कैसे बोलोगे? He gave me cold shoulder. हाँ, ये किसी का मोबाइल बार बार मुझे लग रहा है वाइब्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे सर बताओ। किसी के मैसेज आ रहे हैं। हाँ भाई, ये थोड़ा सा देखो यार, ये बहुत, ये देखो है, साइलेंट मोड पे ये अगर बहुत कर देंगे डिस्टर्ब तो हो रहा नहीं। है, ये डिस्टर्ब हो रहा है मुझे, है ना? फिर आपको म्यूट करना पड़ेगा, मैं म्यूट कर दूंगा, फिर आपको देख लो, डिस्टर्ब हो रहा है इससे। I'm already unmuted. सुबह सुबह ही मैसेज आना शुरू हो जाते हम लोग के। He gave me cold shoulder। नहीं, ऐसे वाले मैसेज ऐसी ही जगह से आते हैं, पता है बेटा। वरना एक मैसेज आएगा किसी चीज का आएगा तो, वरना मैसेज आ रहा है, कहाँ हो? क्लास कर रहा हूँ। नहीं हमसे बात करो, नहीं क्लास कर रहा हूँ। हमसे बात करो, मैं बात नहीं कर रही, नहीं क्लास कर रहा हूँ। वही चल रहा है, बार बार मैसेज भेज रहे हैं। तो ही गेव मी कोल्ड शोल्डर, उसने मुझे जानबूझ के नजरअंदाज किया, अनदेखा कर दिया। तो आप इसको ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में गिव के साथ में यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, एक सेकंड। समझे बेटा? यस सर। तो ऐसे आप इसको यहाँ पर सेंटेंसेस को ही गिव या ही गिव्स ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट में, वो मुझे जानबूझकर इग्नोर करता है, he gives me cold shoulder ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना? He gives me cold shoulder, मैंने जानबूझ के नजरअंदाज किया, I gave him cold shoulder ऐसे आप बोलोगे। My uncle gave me cold shoulder ऐसे बोलोगे। लिख लो सेंटेंस एक दो। यस सर। तो देखिए, जैसे एक ये वर्ड हो गया, ऐसे ही और भी बहुत से वर्ड हैं, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। कोल्ड शोल्डर हो जाता है ऐसे ही। देखिए एक सेंटेंस यहाँ पे हम लिखेंगे, इस सेंटेंस में सिंपल लिखता हूँ, आराम से भाई बंद करो। चाय पीना तो दूर की बात है ना, वो तो
कॉफी भी नहीं पीता। इस तरह के सेंटेंस। अब इसमें जो आपको अलग से एक स्पेशल वर्ड दिख रहा है वो क्या दिख रहा है बताइए? दूर की बात। हाँ, दूर की बात है कि नहीं? तो ये दूर की जो बात है ये थोड़ा सा स्पेशल। इसको चेंज करने के लिए इंग्लिश में बहुत इजी स्ट्रक्चर आता है जिसे बोलते हैं लेट अलोन। लेट अलोन। हाँ, लेट अलोन का यूज, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता लेट अलोन का यूज कहाँ पे और कैसे किया जाएगा, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत इजी वे है ना। लेट अलोन का सबसे आसान यूज क्या होता है? क्या यूज होता है, कैसे यूज करेंगे समझ लीजिए। जैसे मैंने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है, चाय पीना तो दूर की बात है, वो तो कॉफी भी नहीं पीता। तो इसमें सबसे पहले आप बोलेंगे क्या? सबसे पहले बोलेंगे लेट अलोन। क्या बोलेंगे? Let alone. लेट अलोन। दो तरीके होते हैं बोलने के, दोनों मैं समझा देता हूँ। बोलेंगे लेट अलोन टेकिंग टी। लेट अलोन टेकिंग टी, यानी जो चीज दूर की बात होगी वो एक्शन में आ जाएगी आईएनजी लगाकर। दो तरीके होते हैं, एक तो तरीका ये लेट अलोन टेकिंग टी इवन लगाएंगे यहाँ पर, इवन ही डजंट टेक कॉफी। लेट अलोन टेकिंग टी इवन ही डजंट टेक कॉफी। Let alone. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. When he Yes. doesn't take coffee. इसमें सबसे पहले बोलना है लेट अलोन, उसके बाद एक्शन में आईएनजी लगाकर जो चीज दूर की बात। जैसे Yes. बात करना तो दूर की बात है यार, है ना? बात Let करना दूर की alone बात है, वो तो सलाम भी नहीं करता है यार। talk बोलेंगे to- लेट अलोन टॉकिंग टू मी। Talk to me. टॉकिंग लेट अलोन टॉकिंग टू मी Talking to इवन me. ही When डजंट he ग्रीट doesn't मी। greet- ही डजंट ग्रीट मी, सलाम भी नहीं करता है, ऐसे है ना? ऐसे ही देखिए, Yes. ऐसे ही बच्चों देखिए और भी सेंटेंसेस हैं, लेकिन एक दूसरा जो तरीका होता है लेट अलोन का उसको भी समझ लेते हैं, है ना? वो क्या होता है? वो कॉमन सेंटेंसेस जैसे आपने शुरू क्या बेच रहा है? तो ले लो भाई, ले लो, देखो क्या बेच रहा है, ले लो। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या है? वो ये है, जैसे चाय पीना तो दूर की बात है, वो तो कॉफी भी नहीं पीता, तो बोलेंगे ही, जो वो काम नहीं करता, ही He doesn't. डजंट टेक कॉफी। सबसे पहले लिख देंगे वो जिस काम को नहीं करता, यानी एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। ही डजंट टेक कॉफी, सिंपल है ये तरीका, इसमें बोलते हैं लेट अलोन टी। Let alone tea. He doesn't take coffee, let alone tea, यानी चाय पीना तो दूर की बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. इसमें देखिए और भी बहुत से सेंटेंस हैं, आप ऐसे बनाकर बोल सकते हैं। तो ये हो गया, इसमें आप चेंजेस कर लेंगे, बना लेंगे। पास्ट में भी बनता है ऐसे ही, है ना? Yes, sir. पास्ट में जैसे बात करना तो मदद करना तो दूर की बात है, बात तक नहीं की मुझसे, He बोलेंगे doesn't हिडन। He- पास्ट में हिडन He didn't हेल्प मी। help me. He didn't help हाँ, me. लेट अलोन टॉक या लेट Let अलोन टॉकिंग, ऐसे। Talking. बात करना तो जो है, मदद करना तो दूर की बात। तो ये सेंटेंस भी देखिए बहुत ज्यादा यूज होता है ना? इसको लिख लिया आपने? Yes, sir. अब बहुत सारे अंदाज में इसको आप बदल कर बोल सकते हैं, अगर कंफ्यूज होंगे तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा फिर से। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही एक और वर्ड समझ लीजिए, बहुत इजी है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे मैंने कहा मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। मेहनत से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो फेल ना हो हो जाओ। तो fail हो जाओ. तो इसमें क्या है? कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो. कहीं है ना? ऐसा ना हो. इसमें कौन सा कनेक्टर लगाएंगे, कैसे बात करें?
ठीक है, बताओ ट्रांसलेट कैसे करोगे? पता है इसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं? इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है जो ग्रामर में मिलेगा, इसे लगाते हैं लिस्ट। हाँ, सिर्फ लिस्ट ही लगाते हैं। ये अकेला ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट, लिस्ट नहीं है, लिस्ट है, लिस्ट। लेट तो अब ये जो इसका यूज कैसे करेंगे ये जानना ज्यादा जरूरी है। कैसे यूज करते हैं बेटा? मेहनत से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। मेहनत से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। तो आप यहाँ पर बोलेंगे स्टडी हार्ड। देखिए, स्टडी हार्ड यानी मेहनत से पढ़ाई करो, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, तो तुरंत यहाँ पे लगा देंगे लिस्ट। उसके बाद यू शुड फेल। हाँ, लिस्ट यू शुड फेल का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो ये चीज तुम्हारे साथ हो जाए भविष्य। बात समझे आप? Yes. हाँ, यानी ऐसे सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं लिस्ट का यूज करके। जैसे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, बोलेंगे वॉक स्लोली। Walk slowly. वॉक स्लोली, You should fall down. हाँ, you should fall बेटा down। शुड का यूज तो हम जब करते हैं ना, जब मतलब हमें पता होता है Future. कि ऐसा ही होना है, या मतलब चाहिए ऐसा ही चाहिए। होगा। यहाँ पे लिस्ट की कंडीशन एग्जैक्ट पता में, होता है। जी, लिस्ट की कंडीशन में हमेशा इमेजिन करते हैं, इसीलिए शुड का यूज करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम्हें तो यही हो जाना चाहिए। यानी छोटे पढ़ाई बच्चों नहीं को- करोगे तो तुम्हें तो फेल ही हो जाना चाहिए। तेज अगर चलोगे तो तुम्हें गिर ही जाना चाहिए ताकि तुम सबक सीख जाओ। समझे आप? इसीलिए छोटे शुड का बच्चों यूज को- करते हैं यहाँ पर। जी जी, स्टडी हार्ड, लिस्ट यू शुड एक्शन। तो यहाँ पर एक्शन कोई भी हो सकता है। अभी क्लियर है? Yes, sir. तो आपको बेटा पता है क्या करना है? इन सारी कंडीशन से कम 2 3 3 4 4 5 5 सेंटेंसेस बनाकर कंप्लीट करना। ये सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। ये है तो बहुत Yes. छोटे छोटे स्ट्रक्चर, Yes. लेकिन सर, बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बहुत ही ज्यादा, है Yes, कि नहीं? sir. यस सर। Yes. तो इसमें मैं आपको बस यही होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग इसमें से 3 या 2 एटलीस्ट बनाकर मुझे दिखाएंगे, और कल का दिन हम लोग आपको जीडी कराएंगे, है ना? इट इज सैटरडे कल सर, एंड कल मैं आप लोग को ऑफ भी बता दूंगा कितने साल का ऑफ रहेगा बकरीद पर। साल का सर? ओके सर। साल का सर? सर अरे साल वही, का? हाँ वही वही वही। 1000 ईयर। सर कल जीडी कराएंगे तो आप सर मॉर्निंग में तो मत कराइएगा प्लीज, क्योंकि सर मेरी फैमिली आ रही है मुंबई से, मैं तो ज्वाइन भी नहीं हो पाऊंगी। अच्छा जी, तो ये इश्यू सिर्फ आपके साथ होगा ना? के साथ सबकी फैमिली आ रही है मुंबई से भाई? नहीं सर, सर, no. मैं अच्छा, मिस नहीं करना चाहती ना, इसलिए। तो मैम आप मुझे बाद में जो है बात कर लीजिएगा, या शाम को दूसरे बैच के वो है सेल्फ इंट्रो, तो उसमें आप कॉल कर लीजिएगा, या बीच में कॉल कर लीजिएगा, है ना? ऐसे करके। ओके, आई विल ट्राई। कल से ही क्लास आप कर दें आमिर, क्यों? नॉर्मली ट्रांसलेट। ठीक है, आमिर सर कह रहे हैं कल से क्लास ऑफ कर दें। नहीं, कल तो नहीं कुछ सर, No, है। सुबह No, sir, सुबह no, में sir. तो मतलब ये जो टाइम है वो टाइम पे तो ले लेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। Sir, after Eid we are discussing this group. Sir, after Eid Zuha, sir, जी After Eid Zuha, GD after Eid Zuha, sir. please, sir. नहीं, वो तो मैं वीकली रखूंगा ही ना। वो तो आई जस्ट कीप द But जीडी क्लासेस ऑन this एवरी GD, sir. सैटरडे। Yes. डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, ये सारा नोट किया है ना आपने? Yes, यस sir. सर। Yes. चलो, जैसा होगा आई विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। ठीक, ओके Yes, sir. Yes, sir. चलिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.